Class 7th. Today we will discuss chapter 6 of geography, natural vegetation and wildlife. When we talk about the beauty of our country, it includes the description of the natural vegetation, landscape, weather condition, flora and fauna, etc. A wide variety of vegetation and wildlife is found in different parts of our country. Let us learn more about relationship among the altitude, temperature, rainfall conditions and vegetation, as well as wildlife of different areas of India. Plants that grow naturally without any human interference comprise the natural vegetation. The growth of natural vegetation depends upon several factors like temperature, rainfall, sunlight, soil, height, above sea level, etc. It varies from region to region. Natural vegetation can be classified as forest, grassland and thorny shrubs in desert. जब हम बात करते हैं किसी कंट्री की नेचुरल वेजिटेशन की, तो उसमें हम बात करते हैं लैंडस्केप की, वेदर की, कंडीशन की, फ्लोरा और फौना की। इसमें हम बात करते हैं एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल कंडीशन, वेजिटेशन कंडीशन, प्लांट कैसे ग्रो करता है नेचुरल रूप से, ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या है। और नेचुरल वेजिटेशन में कई फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, सॉयल, हाइट सी लेवल से कितनी है। इसमें हम नेचुरल वेजिटेशन में बात करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम चार्ट की बात करें तो फॉरेस्ट, इसमें तीन पार्ट होते हैं फॉरेस्ट। फर्स्ट पार्ट फॉरेस्ट, सेकंड पार्ट ग्रासलैंड और थर्ड पार्ट जो होता है डेजर्ट। फॉरेस्ट की बात की जाए तो फॉरेस्ट जो है 6 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन, नंबर 2 ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, नंबर 3 टेम्परेट एवरग्रीन, नंबर 4 टेम्परेट डेसिडियस, नंबर 5 मेडिटेरियन टाइप, नंबर 6 कॉनिफेरस। ग्रासलैंड में बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। डेजर्ट की बात करें तो टुंड्रा जो कि कोल्ड को कहते हैं, और थ्रोनी बुशेस जो कि हॉट डेजर्ट होते हैं। Areas where temperature and rainfall conditions promote growth of tree will have forest cover. In these regions where amount of rainfall is low, the vegetation cover will be of grasses. Region of extreme dryness are called desert, and vegetation cover will consist of thorny shrubs and mosses. The wildlife any region is mainly dependent on the plant life of region. एरिया जहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल और ट्री ग्रो करते हैं वो फॉरेस्ट बन जाता है। और जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, वेजिटेशन कवर करता है, वहाँ पे ग्रासेस होती हैं। और जहाँ पे खूब सारी ड्राइनेस होती है, सूखा होता है, वहाँ डेजर्ट एरिया कवर करता है और वहाँ पर शर्प्स और मायोसिस होती हैं। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। Growth of forest mainly depends on the prevailing climate condition and the relief feature of any region. Wildlife and its variety is also determined by natural forest cover. So the wildlife varies with the types of forests or vegetation cover. The forest can be divided into the following types. तो फॉरेस्ट जो होते हैं ये कई प्रकार से होते हैं और इस पे कई क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करती है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। Tropical evergreen forests are found region between the tropics where the climate is hot and humid throughout the year. Rainfall is heavy, which promotes thick growth of foliage. Trees grow very tall and have broad leaves. Several variety of trees can be found in the small area. The thick canopies of trees do not allow sunlight to reach the ground, and forests are dark even during daylight. Hardwood trees like mahogany, rosewood, ebony, and common but commercial utilization is different. Commercial utilization is difficult because several species are found in the small areas. These forests are found in Zaire Basin in Africa, Amazon Basin in South America, and parts of Southeast East Asia. In India, these forests are found in the Lakshadweep, Andaman Nicobar Island, and some part of northeastern region. These forests are also called tropical rainforest. The wildlife here is also rich. Several types of animal, birds, insect, reptile dwell here. Elephants,
हिप्पोपोटामस, जगुआर्स, चिंपैंजीज, मंकी, क्रोकोडाइल एटसेट्रा आर फाउंड हियर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है ये ट्रॉपिक्स में ज़्यादातर पाया जाता है। यहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है, ह्यूमिड होता है पूरे साल तक। यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है जिसके कारण यहाँ पे ये पेड़ आगे बढ़ते हैं। ट्री यहाँ के लॉन्ग होते हैं और पत्तियाँ इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अलग अलग तरीके के ट्री पाए जाते हैं। इसमें इस प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं, इन जंगलों में इस प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं जो कि सनलाइट को आने नहीं देती हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्राउंड तक फॉरेस्ट में आने नहीं देती हैं। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं उसमें हार्डवुड लकड़ियाँ होती हैं जिसमें कि महोगनी, रोजवुड, एबोनी ये सब कॉमन होता है। और ये ज़्यादातर कॉमर्शियल इसका यूटिलाइजेशन डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग टाइप के स्पेसीज़ यहाँ पाई जाती हैं। ये फॉरेस्ट जो पाया जाता है जायरे बेसिन अफ्रीका में और अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका में और साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया में अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं। इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, जगुआर, चिंपैंजीज, मंकी, क्रोकोडाइल एटसेट्रा ये सब पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट है जिसका नाम है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। Tropical deciduous forests are found mainly in area where experiences a monsoon type of climate. Therefore, these forests are also called monsoon forest. These are comparatively less dense than the evergreen forest and experiences seasonal change. Trees are of medium height and shed their leaves in dry season in order to conserve water. There is thick undergrowth of bushes, shrubs and dense thickets of bamboos. Hardwood trees like sal, teak, neem, sesame and eucalyptus are found in these forest. These trees have great commercial value and are used for making furniture as well as for transport and construction material. These forests are found in Indian subcontinent, Thailand, Vietnam, Taiwan and southern China, Central America, parts of Brazil, East Africa and northern Australia. The wildlife here are includes tiger, elephants, leopards, rhinoceros, langurs, monkeys, deer and variety of snakes. ये जो फॉरेस्ट होता है ये ज़्यादातर मानसून टाइप का फॉरेस्ट होता है। इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कम घना ये जंगल होते हैं लेकिन ये एवरग्रीन होते हैं फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसमें सीजनल चेंज भी होता है। यहाँ के ट्रीज जो होते हैं इनकी हाइट मीडियम होती है और सिड लीव्स होती है, छायादार पेड़ होते हैं। डेरी और ये कंजर्व वाटर को बचाते भी हैं। इनकी जो जड़ें इसमें जो है बुशेस और सर्ब्स भी होती हैं। इसमें बैम्बूज भी आते हैं। और यहाँ की जो इसमें अगर ट्रीज की बात की जाए तो सॉल, टीक, नीम, शीशम, यूकेलिप्टस यहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी कमर्शियल वैल्यू होती है। इनसे फर्नीचर बनता है, इनसे ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है। ये फॉरेस्ट जो होते हैं ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, साउदर्न चाइना, सेंट्रल अमेरिका और ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो टाइगर और एलिफेंट, लियोपार्ड, रेनासोर्स, लंगूर, मंकी, डियर ये सब और कई वैरायटी की स्नेक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड along the eastern margins of continent in warm temperate region. These are found in southeastern part of China, USA, Brazil and also in eastern coast of South America and Australia. These are mixed forest with both hard and soft wood trees. The main species are oak, pine, wattle, camphor, mulberry, eucalyptus, etc. These trees have good commercial value. The wildlife includes the giant panda, deer, antelopes, monkey, bear, wolves and variety of birds. ये जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें यहाँ पे वार्म और टेम्परेट रीजन में होते हैं और ये ज़्यादातर ईस्ट चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और यहाँ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट होते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं, सॉफ्ट इसमें ट्रीज होते हैं। यहाँ की जो मेन स्पेसीज अगर बात की जाए तो ऑक, पाइन, वेटल, कैम्फर, मलबरी, यूकेलिप्टस ये सब पाए जाते हैं। इनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे अगर वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो जॉइंट पांडा, डियर, एंटीलोप, मंकी, बियर, वुल्व और अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है temperate deciduous forest. These forests are located in higher altitude in cool temperate region. They are found in eastern part of USA, northwestern Europe, North China, Japan, North and South Korea, southern Chile and New Zealand.
The trees, though not very tall but have thick trunks and broad leaves, they shed their leaves in the dry season. The common species are oak, ash, beech, maple, poplar, redwood, and firs. Deer, foxes, bear, wolves, bisons, beavers, and wildcats are commonly found animal in these forests. Birds like peasants and monal are found in these forests. इन फॉरेस्ट की बात अगर की जाए तो इस फॉरेस्ट में जो है ये यूएसए और वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ चाइना, जापान और साउथ कोरिया के रीजन में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। यहाँ के ट्रीज़ बहुत लंबे तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ठीक होते हैं, इनकी लीव्स ठीक होती है। और यहाँ पे स्पीसीज बात की जाए तो ऑक, एश, बिर्च, मैपल, पॉपुलर, रेडवुड ये पाए जाते हैं। डियर, फॉक्सेस, बियर, वुल्फ, बिशन, ये वाइल्ड कैट यहाँ पे पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में। अगर बर्ड्स की बात की जाए तो पीजेंट्स और मोनल यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिटेरियन वेजिटेशन। Mediterranean vegetation. These forests are found on the western margin of continent in the warm temperate region. These areas have dry summer and rainfall occurs in winter season. Trees have broad waxy leaves with thick barks and long roots. This helps them to withstand and dry summer period. The main trees are olive, oak, fir, pine, cedar, cypress, citrus fruit like orange, lemon, olive, grapes, and natural vegetational cover has been replaced by large scale fruit orchards. Hence not much wildlife in found here. It is found in areas around the Mediterranean Sea in the Europe, Asia, and Africa, California in USA, Central Chile in South America, South Africa, and Southern Australia. ये जो मेडिटेरियन वेजिटेशन होता है ये जो है वार्म टेम्परेट रीजन में होता है। यहाँ पे ड्राई समर होती है, रेनफॉल यहाँ पे जो होती है ज़्यादातर विंटर सीजन में होती है। ट्रीज जो होते हैं इसमें वैक्सी लीव्स होती है और बार्क थोड़ी सी पतली होती है। रूट, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये जो है यहाँ की ट्री की बात की जाए तो ऑलिव, कॉर्क, ऑक, फिग, पाइन, सीडर, साइप्रस, साइट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन, ऑलिव, ग्रेप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर यहाँ वेजिटेशन की बात की जाए तो फ्रूट के बाग ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत कम होते हैं। और ये अगर पाए जाते हैं तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया यूएसए, सेंट्रल चिली इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट जो है ये दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड between latitudes 50 degree north, 70 degree north. They are also called taiga and also found in higher altitudes on high mountain range like Himalayas and Alps, found in northern parts of North America, Europe, and Asia. They lie in part of Alaska, Canada, Norway, Sweden, Finland, Poland, Russia, and Siberia. Trees are tall and straight with small needle-like leaves. These trees are softwood trees and are extremely important commercially because pulp obtained from this tree is used for manufacturing paper and newsprint. The wood is also used for making furniture, matchstick, plywood, and sports goods. Cheer, pine, cedar, fir, and spruce are main species found in coniferous forest. The conical shape of trees is best suited to the climatic condition as it allows snow to slide down the leaves and branches of these trees. Silver fox, mink, polar bear, sable, and beavers are commonly found in these forests. Most of these have thick cover of fur. Caribou, reindeer, and wolves are found here. कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात की जाए तो इसको टैगा भी कहा जाता है, टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये बहुत ऊंचाई पर यानी माउंटेन रीजन में, पहाड़ों पे ये पेड़ पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया यहाँ पे पाए जाते हैं। अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, रशिया, साइबेरिया यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो ट्रीज होते हैं लॉन्ग होते हैं और सीधे स्ट्रेट होते हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं निडल लाइक सुई के आकार की नीडल्स होती हैं। और ये ट्रीज जो होते हैं सॉफ्ट वुड के लिए होते हैं। ये ज़्यादातर कॉमर्शियल वैल्यू इनकी होती है। और ये जो है ये ट्रीज जो होते हैं
मैन्युफैक्चरिंग इससे जो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर पेपर बनाए जाते हैं। और ये लकड़ियाँ जो होती हैं फर्नीचर बनाने के लिए, मैच स्टिक बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए और स्पोर्ट्स गुड बनाने के लिए यूज होता है। चिर, पाइन, सीडर, फिर स्प्राउस यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ की जो ट्री होते हैं ये बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन को स्नो पर ये ज़्यादा अच्छा होते हैं ये ट्रीज। अगर यहाँ के यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर और ये जो है सेबल और विबेयर्स, ये सब पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रासलैंड एंड वाइल्ड लाइफ। grassland and wildlife. Most of grasslands are found in the region of low rainfall. There are two types of grassland, tropical and temperate. Tropical grassland are found in tropical zone, whereas temperate grassland are found in interiors of continents in the mid latitudes. Now first, tropical grassland. The tropical grassland are also known as savannas. These grassland lies on either side of rainforest in Africa, Brazilian plateau of South America, Deccan plateau of India, northern Australia. Rainfall in this region range between 25 centimeter and 75 centimeter and can support tall coarse grasses are high as 2 meter to 4 meter. Interspersed with few short trees. Many parts of the grassland are used for grazing or farming. These grasslands are home to herbivorous animals like elephant, deer, zebra, and giraffes. Leopard can be found in these these areas in different parts of world. These grasslands are known by different names such as Llanos in Venezuela, Campos in Brazil, Argentina and Uruguay and parkland in America. तो ग्रासलैंड दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सबसे पहली हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग में बात करते हैं तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना भी कहा जाता है। ये जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, डेक्कन प्लेटू, इंडिया में बात की जाए तो यहाँ पाया जाता है और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ पर रेनफॉल जो होती है इस रीजन में 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ पे जो है ग्रासेस जो होती हैं ये टॉल लंबी होती हैं, लगभग 2 मीटर से 4 मीटर की ग्रासेस यहाँ पे होती हैं। और ये ग्रासेस जो होती हैं पूरे वर्ल्ड में, इसमें अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ की जो ग्रासलैंड है ये ज़्यादातर ग्रेजिंग और फार्मिंग के लिए यूज होती हैं। ये ग्रासलैंड जो होते हैं हर्बीवायरस यानी कि शाकाहारी जीवों के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। इसमें के एलिफेंट, डियर, जेब्रा, जिराफ, लिपार्ड इनके लिए बहुत उचित होती हैं। यहाँ पे इनका अच्छा भोजन मिलता है, इनके लिए ग्रासेस बहुत अच्छी मिलती हैं। इन ग्रासेस को अलग अलग नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ल्यानोस वेनेजुला में जाना जाता है, कंपास ब्राज़ील में जाना जाता है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में जाना इस प्रकार जाना जाता है और पार्कलैंड अमेरिका में जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है टेम्परेट ग्रास। These grasslands are found in colder and dry region as the amount of precipitation is very low. The grasses here is short and less dense and trees are almost absent. These are very suitable for cattle and sheep rearing and are being used for extensive wheat and corn cultivation. Temperate grasslands are called steppes in Eurasia, prairies in North America, pampas in South America, veld in South Africa and downs in Australia. Swift moving animals like antelopes, horse, giraffe, wild asses, leopard, wild dogs and rabbits are found in these grasslands. In Australian temperate grassland, a flightless giant bird emu is also found. टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर बात की जाए तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड ज़्यादातर कोल्डर रीजन में होते हैं और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है यानी बरसात बहुत लो होती है। ग्रासेस यहाँ की बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है, कम घनी होती है। ट्रीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल एब्सेंट ही होते हैं, पेड़ तो यहाँ पाए ही नहीं जाते हैं। और ये कैटल के लिए और सीप रेयरिंग के लिए ये जगह यूज होती है। वीट और कॉर्न कल्टिवेशन यहाँ होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड को स्टेप्स कहा जाता है यूरेशिया में, स्टेप्स कहा जाता है यूरेशिया में और प्रेरी कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, पंपास कहा जाता है साउथ अमेरिका में और वेल्ड इसको साउथ अफ्रीका में कहा जाता है, डाउन्स इनको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। और ये यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं एंटीलोप्स, हॉर्स, जिराफ, वाइल्ड एसेस, लिपार्ड, डॉग्स, रैबिट्स यहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ पे एमू भी पाया जाता है।
Desert vegetation and wildlife. Deserts are large, dry and sandy areas which experiences extreme climatic condition. Deserts are found all over the world on the basis of prevailing climatic conditions and relief features. The deserts world over are classified into two types: hot desert and cold desert. Hot desert and cold desert. The hot deserts are found in tropical and subtropical areas. These deserts experience very high temperatures with extremely low rainfall. Vegetation cover includes thorny bushes, cacti and few salt trees. These have long roots, thick stems, waxy leaves and thorn which help to survive in harsh climatic conditions. A few trees like date palms are found near oases, the Sahara and Kalahari Desert of Africa, Atacama Desert of South America, Sonoran Desert of North America, and Great Australian Desert, Arabian Desert, and the Indian Desert are important ones, which are generally found along the western margin of continent. The camel is the most important animal of desert. Camels have special body features such as a nostril, eyes, neck, tough lips and tongue which help them to survive in extreme conditions. Camel can live without water for many days. It is known as sheep of desert. Other animals found here: the antelopes, gazelles, wild asses, rodent, desert fox, snakes, lizards and different types of insects. हॉट डेजर्ट की अगर बात की जाए तो हॉट डेजर्ट जो होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है। यहाँ पे जो वेजिटेशन पाया जाता है वो थ्रोनी बुशेस पाई जाती हैं, कैक्टी यहाँ पर होता है, साल्ट ट्रीज होते हैं, लॉन्ग रूट्स, इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत लंबी होती हैं, थिक स्टेम जो होती हैं पतली होती हैं, तना इसका पतला होता है, वैक्सी लीव्स होती हैं। और ये जो है इनकी यहाँ पर जो ट्री पाए जाते हैं डेट पाम, खजूर जिसको कहते हैं, ये ओएसिस के निकट पाए जाते हैं। सहारा जिसमें डेजर्ट का अगर नाम बात की जाए तो सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका के, अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका का, सोनोरान डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका का, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का, अरेबियन डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स पाए जाते हैं। ये और कैमल ये डेजर्ट एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता है। इसकी बॉडी बहुत अलग तरीके से होती है, नॉस्ट्रल और आइज, नेक, इसकी लिप्स बहुत अलग तरीके से होती है जो कि यहाँ पर इस कंडीशन को सरवाइव कर सकती है। कैमल जो होता है बिना वाटर के कई कई दिन रह सकता है। इसको जो है डेजर्ट का सिप भी कहा जाता है। अब दूसरे एनिमल अगर डेजर्ट में पाए जाते हैं तो वो है एंटीलोप, गैजल, वाइल्ड एसेस, रोडेंट, डेजर्ट फॉक्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब अगर बात की जाए कोल्ड डेजर्ट की, द कोल्ड डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड्स and on high mountains. These cold deserts are found around the North Pole in Eurasia and North America. The extremely cold conditions do not allow the growth of vegetation on a large scale. Small plants like myosis, lichens and few bushes grow here only during the short summers. These treeless regions are called tundra. Animals here have thick skins or fur which protects them from extremely cold conditions. Polar bears, muscus, seals, walrus, reindeers, Arctic wolves, snow foxes are found. Some of animal found here. यहाँ पे अगर कोल्ड डेजर्ट की बात की जाए तो कोल्ड डेजर्ट जो है ये हायर एल्टीट्यूड माउंटेन के एरिया में पाए जाते हैं और ये कोल्ड डेजर्ट नॉर्थ पोल के पास ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के पास। यहाँ पे बहुत ठंडा, यहाँ पे ये जो है होती है ठंडे मौसम के कारण बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, बहुत छोटे छोटे पेड़ यहाँ पे उग पाते हैं। इसमें ओएसिस और लिचेंस हैं और यहाँ पे बहुत थोड़ी गर्मी पड़ती है, शॉर्ट समर होती है। ये एरिया ट्रीलेस होता है, इसको टुंड्रा रीजन कहा जाता है। यहाँ अगर एनिमल्स की बात की जाए तो यहाँ एनिमल्स जो पाए जाते हैं उनकी स्किन थिक होती है जो कि उनको जो है इस कंडीशन से बचाती है। इसमें पोलर बियर है और मस्कॉस है, सिल्स है, रेंडियर है, आर्कटिक आउल्स है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अब हम इसके लास्ट पेज पर चलते हैं। इसके लास्ट पेज के हिसाब से
Human activities have transformed the natural vegetation cover as well as the animal life all over the earth. Deforestation, agriculture, mining, hunting, industrialization, etc. are showing their impact in a big way. A large number of plant animals and birds are either endangered species or have become extinct. Human beings are modifying and even destroying several ecosystems of meet one's need and sometimes for commercial gains. Deforestation is contributing to global warming. Temperatures are rising, glaciers are melting, and deserts are expanding. We need to do something to check this. Efforts have to be made all over the world. Then only can our planet be saved. Let us think and work together to change this negative trend, because reckless exploitation of natural resource in any form creates a severe imbalance in the natural balance of the environment. We therefore really need to think seriously for the conservation of environment. ह्यूमन एक्टिविटी की बात की जाए तो मानव एक्टिविटी के द्वारा ये वेजिटेशन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, जिसका कारण है एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, हंटिंग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसके कारण से ये नेचुरल वेजिटेशन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, जानवर, चिड़ियाँ ये जो है इंडेंजर्ड कई हो गई हैं, कई तो एक्सटेंट हो गई हैं। अगर ह्यूमन की एक्टिविटी इसी प्रकार से होती रही और वो इसी प्रकार से इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता रहा, बर्बाद करता रहा अपने नीड के लिए, खूब पैसा कमाने के लिए, अपने लाभ कमाने के लिए, जिसमें कि डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ धीरे धीरे पिघल रहे हैं और धीरे धीरे डेजर्ट बढ़ रहे हैं, रेगिस्तानी एरिया बढ़ रहे हैं। अगर ये धीरे धीरे चला तो पूरा वर्ल्ड इस पे बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो है इसको वर्ल्ड को बचाए, इस पे चेंज करे और ये चीज़ें जिससे कि इम्बैलेंस होने से खत्म ना हो सके, इम्बैलेंस ना हो सके और प्रकृति का बैलेंस बना रहे, जिससे कि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।